Sri Ramamurthy was born on May 15, 1925 at Udumudi, a small town in East Godavari district of Andhra Pradesh, as the fifth of 10 children, 7 sons and 3 daughters of Sri Venkatachalam, who was a small but enlightened farmer in the village. The family held very modern views, and even in those days when education in small towns was not so common, they provided it to all their sons and daughters in equal measures. The children proved to be extremely good at school, and particularly Sri Ramamurthy was exceptionally brilliant. His eldest brother was mainly instrumental for his higher studies. He had his early schooling in Udumudi in district board school and passed his secondary senior examination from Government Model School Rajamundry in 1941, obtaining first division with distinction and was awarded a merit scholarship. He joined PR College, Kakinada, from where he obtained BSc Honours in Botany in 1945 in first division, securing first position in the Andhra University. Thereafter, he joined Banaras Hindu University, Varanasi for MSc in Botany, which he passed in first division and stood first in order of merit in the university. During all these years, he won many prizes and distinctions for his academic excellence. In his early days of education, he learned Sanskrit and studied Shastras and science of astrology, in which he acquired a good bit of excellence. Sri Ramamurthy divided his service period almost equally between the Meerut College and the Meerut University. BSc Part 2 में थे हम लोग, तब वो हमारी क्लास लेते थे. Then he became warden. तो MSc में he was taking classes as usual and he was a warden and usually taking daily round in the hostel and most dedicated to his work. और फिर then he became the warden of old house. We were associated with him. The best quality was that he never brought any note for teaching the classes and he was fully prepared as he was the master of the subject. Totally everything which he taught to us by mouth and usually most dedicated for time and in research lab. Usually used to come at 7:30 in the morning, going in last. In 1952, I went from NCC and Punjab Regimental Center. I was trained at Punjab Regimental Center, Meerut. At that time, I came in contact with Professor Y.S. Murthy. Professor Y.S. Murthy was a very devoted botanist. On Sunday also, he used to work in the laboratory. He was fortunate in getting his first assignment in his own alma mater, the BHU, as an assistant professor of botany in a temporary vacancy for 1 year. Later, in 1943, in response to a request from Dr. V. Puri, Professor Y. Bhardwaja recommended Murthy for an appointment as a lecturer in botany in the Meerut College. He was straight away offered the post, which he joined in July 1948. A year later, Dr. V. Puri went away on study leave to USA for a year, and some time after, the next person who officiated as head of the department also left for good. It thus fell on young Murthy to shoulder the responsibility of running the department as its head. Just about this time, he got an informal offer for a lectureship in the Delhi University. Murthy kept it pending till Dr. Puri returned to the department and finally declined it. Thus, one fact coupled with the efficiency, tact and devotion with which he conducted the affair of the department in those somewhat difficult months convinced the college authority of his extraordinary capabilities and commitment to the department in particular and to the college in general. As a result, not only did he share more and more responsibilities in the department, but he was also picked up by all the subsequent principals of the college for various assignments requiring competent handling. In short, he worked on almost all the commitments
that exist in the big institution like the Meerut College at different times. For instance, he had been an active member of admission committee, scholarship committee, and also NCC officer, chief proctor, warden of hostel, and a host of other ad hoc bodies. Everywhere he worked, endeared himself to all concerned and made himself almost indispensable. मैं पहली बार सर से 1977 में मिला। मुझे अपने व्हीकल पे बिठा के अपने घर ले गए खाना खिलाने, तो मैं इतना अभिभूत हुआ और तब से आज तक मैं सर की बातें हमेशा याद करता रहता हूं और मैं जब भी पढ़ाता हूं इस सर की याद आती है मुझे। 1980 में मैं पीएचडी करके मेरठ से लौटा। दुर्भाग्य से मेरे पिता को हार्ट अटैक हुआ। मुझे अभी भी तक याद है, वो नवंबर की रात थी, 23 नवंबर की। सर को लगा कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो ग्वालियर जा रहे थे कि इंटरव्यू लेने, लेकिन बीच में इतना टाइम उन्होंने निकाला कि वो अलीगढ़ आए मेरे घर मेरे पिता को देखने, और उनको लगा कि शायद बचेंगे नहीं, तो उन्होंने मेरे एक स्टूडेंट से, उन दिनों फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मेरे घर पे लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था 1980 में, तो उन्होंने एक टेलीग्राम दिलवा दिया, ग्वालियर यूनिवर्सिटी नॉट कमिंग विद हेड लेट अलीगढ़। और उस रात को मेरे पिता की डेथ हो गई और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा वो रात। सर ने कितना प्यार मुझे किया। मैं अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था, मेरे पारिवारिक उत्तरदायित्व थे मेरे साथ। सर का जो संबल मुझे मिला, दूसरे दिन सर ने क्रिमेशन कराया, उसके बाद लौट के मेरठ गए और फिर सर की डेथ जब हुई है तब से वास्तव में मैंने समझा कि मैं उस दिन अनाथ हुआ हूँ। सर ने कभी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया अपने जीते जी कि मेरे पिता नहीं हैं। सर अद्वितीय वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक तो वो थे ही, बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, एनसाइक्लोपीडिया थे पूरे। हम कोई भी प्रॉब्लम आती थी उनके पास पूछने जाते थे तो वो ये भी बता दें कि लाइब्रेरी जाना, उधर वहाँ वो बुक रखी है, उसमें वहाँ वो लिखा मिला है। इतना ताज्जुब होता था सर को इतना कैसे याद रहता है। और उन्होंने तो मुझे प्लांट का आइडेंटिफिकेशन सिखाया। आई वॉज लकी एनफ कि वो मेरे साथ फील्ड में गए। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2-3 साइट पे वो मेरे साथ गए थे और फ्लोरिस्टिक एक्सप्लोर किया था हमने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। As a warden, for instance, he took very keen and personal interest in the inmate and tried to be their true guardian. He introduced yoga classes for his ward and he himself used to participate in them every morning. He will help needy students in every way, even financially. As an NCC officer, he was so efficient and popular that his commanding officer always pleaded for Murthy's extension in the cadre. As a chief proctor, he was strict, disciplinarian, and had the tact to manage well the affairs of the students, even in those difficult days when some elements were encouraged by some outside forces to create disturbances on the college campus. Notwithstanding his numerous co-curricular and extracurricular activities, Murthy did not neglect his academics. He was very sincere and devoted teacher, one by whom teaching profession would like to be judged. जब मैंने एमएससी बॉटनी में एडमिशन लिया, सब लोग उनको चचा बोलते थे, चचा मूर्ति। मैंने कभी ज़िंदगी में उनको चचा नहीं बोला। ऑलवेज आई हैड द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर हिम। मैंने देखा एक छोटा सा आदमी है लेकिन फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ शार्प मेमोरी। और मेरठ कॉलेज में अच्छे से अच्छे लोग भी जो थे शाम को इनसे पर्सनल एडवाइस लेने के लिए आते थे। तो दैट वाज वन थिंग आई फेल्ट कि इस आदमी में कुछ तो है। ही इज़ नॉट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही इज़ ओनली नंबर 2, लेकिन टोटल कमांड सब इनके पास था। He never neglected his classes and could teach several branches of botany with confidence. He was especially good in algae, bryophytes, and angiosperms. He got himself registered for PhD degree in the Agra University under the guidance of Dr. V. Puri. He worked out in detail the morphology and floral anatomy of some of the peperelles whose material Dr. Puri had bought from the Cornell University, Ithaca, New York, and Copenhagen Botanical Gardens, and got a well-earned PhD degree in 1956.
In the meantime, the School of Plant Morphology was established in the Meerut College as a part of the Botany Department. With the help of UGC, UP Research Grants Committee and liberal financial assistance from the college management, this institution soon became a good center for research in plant morphology, taxonomy, plant physiology, ecology, etc. And it was so recognized by the UGC. It acquired fairly good library facilities and had a number of cubicles for teachers and senior workers, 2 large laboratory halls for students, and a spacious herbarium. This started attracting large number of research scholars and teachers from different parts of United Kingdom. Dr. Murthy's contribution in the making of School of Plant Morphology had been enormous. In the academic work too, Murthy had a good share. Some of the scholars were registered under him and some with Dr. Puri. These 2 persons formed an ideal team in which both were complementary to one another. They both became almost inseparable, and perhaps they could have permanently stayed in the Meerut College had things not taken a turn for the worse there. So when it came to shifting to the Meerut University, they both moved together, and here also the same sort of understanding and relationship continued. ये 27 दिसंबर सन 71 की बात है। हम मेरठ यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट वनस्पति विभाग ज्वाइन करने के लिए आए और उस समय खाली उस कैंपस में एमफिल बिल्डिंग और 1-2-4 और बिल्डिंग्स नहीं, कुछ क्वार्टर्स थे। फिर डिपार्टमेंट के ऊपर गए और मूर्ति साहब के कमरे में गए और एक ये अजीबोगरीब बात है कि पहली मुलाकात में लगा कि ऐसे पता नहीं कितने सालों से हम इनको जानते हैं और इसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा क्यों लगा। और मज़ेदार बात यह है कि मैं उस समय अमेरिका से आया हुआ था 1 साल की छुट्टी में। मैं अमेरिका में सनी बफेलो के ट्रॉकेयर कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 1 साल की छुट्टी में आया था। मानी बात है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में था, वहाँ से मैं यहाँ रीडर होके आया, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं यहाँ रुकूँ। 27 को आया था, 31 को फिर मैं वापस इलाहाबाद चला गया। और आप ये मानिए कि मैं वापस जाने के मन में नहीं था। 3-4 दिन निकल गया, पर कहीं पे पता नहीं लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। और वो पुकार प्रोफेसर मूर्ति का फेस था, जबकि उतनी घनिष्ठता मेरे साथ तब तक नहीं हुई थी। वी आर नॉट दैट इंटीमेट टिल, बट कहीं पे उनका फेस आया, मुझे लगा कि मैं इनको दगा नहीं दे सकता। मेरठ यूनिवर्सिटी पायोनियर रहा है कई चीज़ों में, एमफिल प्रोग्राम बनाने में, सेमेस्टर सिस्टम बनाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग में, और ख़ास कर ये बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेसर पुरी, प्रोफेसर मूर्ति ये मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चरल बॉटनी के ये विद्वान थे, फिर भी इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो सारे मॉडर्न एरियाज थे इनको उन्होंने प्रमोट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो हैं दूरदर्शी थे, प्रोफेसर पुरी और प्रोफेसर मूर्ति दूरदर्शी थे, और प्रोफेसर मूर्ति साहब ने ये देखा कि शिक्षा में, बॉटनी के एजुकेशन में या बायोलॉजी के एजुकेशन में ये बहुत आवश्यक है कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इनका इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो उन्होंने एक यूजीसी के ज़रिए उनको एक लीडरशिप प्रोजेक्ट मिला। लीडरशिप प्रोजेक्ट ये था कि बीएससी का सिलेबस एकदम नए ढांचे में बनाना है, सेमेस्टर सिस्टम वाइज बनाना है, हर एक विषय का एक समय का यूनिट बनना है कि इतने घंटे का होगा और उसमें बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये पूरा भागीदारी से होगा। ये नहीं होगा कि हम टीचर्स पे थोप रहे हैं या विद्यार्थियों पे थोप रहे हैं। लीडरशिप प्रोजेक्ट का था कि हम जो अपने टीचर्स को जो नई चीज़ पढ़ानी है वो हम जो डेवलप करेंगे, नया सिलेबस डेवलप करेंगे, वो प्रोफेसर मूर्ति का ये खास एक अंदाज था कि इसे भागीदारी से, यानी इट हैज़ टू बी ए पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट ऑफ द सिलेबस। एक ड्राफ्ट सिलेबस बनाया गया और उसके बाद हर एक टॉपिक पे लेक्चर्स, टीचर्स आ जाते थे, हमारे सेशंस होते थे, टीचर्स आते थे, वो लेक्चर देते थे। ये नहीं कि हमने सिलेबस बना के
हमने थोपा टीचर्स पे। आज जो आप इतना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आदि आप देश में देखते हैं डेवलप्ड है, एमफिल प्रोग्राम डेवलप्ड है, सेमेस्टर प्रोग्राम डेवलप्ड है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेवलप्ड है। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का, छोटी सी यूनिवर्सिटी थी मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी के मूर्ति साहब और पूरी साहब के वजह से, उनकी दूरदर्शिता की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर फोरसाइट दैट वी हैव गॉट इट टुडे। मे बी हो सकता है पूरी देश हमारा इस बात को रिकॉग्नाइज ना करे, पर ये सही है। डॉक्टर साहब ने अपने सब्जेक्ट के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो था हमारे जो सबसे पुरानी बॉटनिकल सोसाइटी है, जर्नल इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी, उसका जर्नल और ये सोसाइटी को पूरा डेवलप करना। क्योंकि वो जो है, जितना मुझे याद है 72 तक में काफ़ी मतलब निष्क्रिय हो चुका था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हम लोग की साइंस कांग्रेस में मीटिंग हुई, एक इनका एनुअल मीटिंग वहाँ होता था, उसमें मज़ा नहीं आता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा, पुरी साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, हमने भी कहा कि इसको अब हमें अलग कर लेना चाहिए। साइंस कांग्रेस के साथ मिलावट का ज़रूरत नहीं है, हम अलग से कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उन्होंने साहब अलग से कॉन्फ्रेंस करा। इसके अलावा हमारे यहाँ जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी का एडिटोरियल ऑफिस था, तो वो सेक्रेटरी भी बने, हमारे एडिटोरियल ऑफिस भी आया और ये पूरा सोसाइटी को उन्होंने एकदम समझ लीजिए 200-250 मेंबरशिप से 3-4 साल के अंदर 1000 के ऊपर, 1200 के ऊपर मेंबरशिप हो गया और बहुत एक्टिव काम होने लगा। पेपर्स जो छपते थे वो बहुत अच्छे पेपर्स छपने लगे। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि आखिरकार आज डॉक्टर विमला वाई, प्रोफेसर मूर्ति की बेटी, इस धरोहर को उन्होंने आगे और बढ़ाया है और GIBS आज एक बहुत ही अच्छा जर्नल माना जाता है। इन्होंने बहुत बॉटनी में बहुत सारा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सिलेबस के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, बॉटनिकल सोसाइटी के डेवलपमेंट के ज़रिए, GIBS के ज़रिए। पर सारा नींव इसका वो डिपार्टमेंट था और डिपार्टमेंट में इन्होंने डिपार्टमेंट को अपना बपौती नहीं समझा। इन्होंने समझा ये विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थियों की प्रगति के लिए है और शिक्षकों के लिए है। और मतलब जो सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है किसी शिक्षक का, उसको बढ़ावा देना। और ये एक विशेष कारण है जिसकी वजह से मैं अमेरिका वापस नहीं गया। During 1961 to 1962, Dr. Murthy was offered a research assistantship by Professor Barbara Palser at Chicago University in USA. Here he made extensive studies of organography and vascular anatomy of Erica of the family Ericaceae, attended several courses and studied the genetics and nutritional aspects of Fusarium. डॉक्टर मूर्ति बहुत असाधारण किस्म के आदमी थे और स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी जो वहाँ है मेरठ कॉलेज में, उसके बनाने में उनका बड़ा योगदान था। और ये बॉटनी का जो स्कूल है, इसका दुनिया भर में नाम है। और मैं मानता हूँ डॉक्टर पुरी और डॉक्टर मूर्ति अगर मेरठ कॉलेज में ना होते, बाहर कहीं होते, तो ये नोबेल प्राइज़ का केस थे दोनों प्रोफेसर्स। और उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट को इतना मदद की जितनी किसी ने नहीं की। एक बार पूरा कॉलेज PAC ने घेर लिया मुझे गिरफ्तार करने के लिए। डॉक्टर मूर्ति ने मुझे हॉस्टल से बुलाया, किराया दिया और कहा कि तुम पीछे की दीवार से चले जाओ और जब तक तुम दिल्ली पहुंचोगे तब तक मैं पुलिस को एंटर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं कॉलेज की ऑटोनॉमी भंग नहीं होने दूंगा। जब तक ये कोई ऑर्डर नहीं लाएंगे किसी जज का या मैजिस्ट्रेट का, तब तक मैं मर जाऊं लेकिन पुलिस नहीं घुसेगी। एंड ही डिड सो, ऐसा ही किया उन्होंने। जब मैं दिल्ली आ गया और मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि डॉक्टर मूर्ति रोके हुए हैं। इतने शानदार आदमी थे, कई बार हमारी फ़ीस जमा करा देते थे, बहुत मोहब्बत करते थे हम लोगों से और उनका स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सम्मान था। On his return, he visited some laboratories in Europe. By this time, thanks to the substantial contribution of Murthy and other colleagues, the botany department with its School of Plant Morphology acquired the status of being known not only nationally but also internationally. A scholar from the Smithsonian Institution of Washington, D.C. came and worked in the department for a year. Some students from Thailand were also assigned to the department by the government of India. And बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मूर्ति साहब ने एक चिट्ठी लिखा मेरठ से, I am looking for a young man who can come and teach because
we are now having only intermediate classes, but we want to start a degree class. So he sent Murthy Sahab to Meerut. That's how it began. The first time I visited Meerut was on a different occasion. That was an occasion when Professor Puri started a school of plant morphology there. And it was a very old house, and there were very big guests. My teacher P. Maheshwari was a doyen of botany. वो ढाका से आए थे. After partition also he was there for some time, for 3 years. He was there with also physicist Satyen Bose, the man who has discovered, worked with Einstein and he has got bosons and so on. Now Murthy Sahab में बहुत गुण थे. एक तो he was extremely hardworking. He was also a very strict warden of one of the hostels there. लड़के डरते थे उनसे because he was disciplinarian also. On his return from USA, Dr. Murthy was selected as one of the participants for a workshop in plant physiology techniques organized by the University of Delhi and sponsored by UNESCO for Southeast Asia. The training that he received here helped him in diversifying his research activities. In 1965, the NCERT entrusted the department to conduct a summer school for the students selected from northern India under the Science Talent Research Scheme. This was amongst the few first summer schools of its kind, and Dr. Murthy was one of the most active and dynamic resource persons. He did everything to make it a memorable experience for the bright young students. Through his personal example, he made a deep impression on their minds, with the result that some of them still remember him with gratitude. In 1965, on Dr. V. Puri's taking over the principalship of the college, Dr. Murthy formally became the head of the botany department. Soon after, he had to face some additional responsibility. The UP government approved a scheme to improve the qualifications and performance of some of intermediate college teachers who were not holding MSc degree and thus not adequately qualified to teach intermediate classes. They were to given a postgraduate diploma course of 1 year duration to meet the requirements. The botany department of the Meerut College was assigned a batch of some 40 such teachers, and Dr. Murthy, with the help of his colleagues, did the rest. This was, of course, over and above his normal duties. Nevertheless, Murthy made such an impact on their minds that those teachers still feel so much attached and grateful to him. In 1966, the Meerut University was established as an affiliating university. Its Vice Chancellor, Dr. R.K. Singh, was soon impressed with the sharp intellect, capacity for hard work, and devotion to duty of Mr. Murthy. In 1966, the Meerut University was established as an affiliating university. Its first Vice Chancellor, Dr. R. Singh, was soon impressed with the sharp intellect, capacity for hard work, and devotion to duty of Dr. Murthy. He began to utilize his services more and more for university work. Dr. Singh persuaded both Dr. V. Puri and Dr. Y.S. Murthy to shift there as professor and reader respectively. मूर्ति साहब की जो इकलौती मेरे को अच्छी बात लगी कि वो बच्चों के अंदर से चीज़ें निकलवाते थे. पहली क्लास हमारी फाइकोलॉजी की थी, एल्गी की, और उस एल्गी की क्लास में हम 10 बच्चे थे. 10 बच्चों से उन्होंने 10 के 10 ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक निकलवाई. करेक्टरिस्टिक निकलवाने के बाद में सारी चीज़ें हमसे ही उगलवा के, तो उनकी इस बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि आज भी मैं जब यूनिवर्सिटी में क्लास लेने जाता हूँ तो मैं अपने आप जो बनाया हुआ प्रेजेंटेशन से पहले बच्चों की बातें जानता हूँ और उनका कितना उन्हें पता है, उससे आगे की बातें शुरू कर. प्रोफेसर वाई.एस. मूर्ति एक इतने काइंड हार्टेडली आदमी थे कि अगर उनके पास कोई भी समस्या लेके जाओ तो वो एक जैसे घर में पिता वाली हैसियत होती है. तो वो पहले बातें सुनते थे, फिर हमें फटकार लगाते थे और फिर उसका हमें सॉल्यूशन देते थे. Here
also, Dr. Murthy spent about 20 years working in different capacities. Right from the beginning, every Vice Chancellor knew how hard-working, how sincere, how efficient and quick to understand, and above all, how devoted Dr. Murthy was. So every Vice Chancellor from the very beginning utilized his services for any job requiring efficient handling, so much so that one time he was deputed to defend the university in an inquiry case instituted by the state government. He did lot of space work in framing courses of studies for different levels at different times. Notwithstanding all this, Murthy never neglected his academic responsibilities. He used to have major share of MPhil teaching and later on MSc teaching also. Many new courses like wood technology, ultrastructure, tissue culture, etc., which others would shirk to being with, Murthy would welcome. Quite often, his lectures would extend beyond 2 hours and no student would like to miss them. In matter of research also, Murthy was a very hard taskmaster. All his research scholars had good grinding in micro technique and were reputed to be very hard-working and sincere. A lesson that Murthy taught through his personal example. While in the university, Murthy diversified his research activities considerably. He guided and supervised research in very different areas. Dr. G. Prakash, Dr. Karan Singh, Dr. S. K. Srivastav, etc. studied with him the physiology, anatomy and histochemistry of abscission. Dr. Madhulika Gupta, Dr. Meenu worked out the reproductive biology of Weissia faba and Leucaena respectively. He also prepared and published some review articles on various aspects of floral anatomy and embryology. फॉर्चुनेटली मेरी जो उनसे पहली मुलाकात हुई एज ए वार्डन हुई। मुझे वाकई में वो लाइक करते थे, मुझे ही नहीं करते थे, वैसे तो सारे हॉस्टल में सभी विद्यार्थियों के साथ या सभी स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत प्यार से रहते थे। और मेमोरी इनकी शार्प इतनी थी कि हर स्टूडेंट का बायोडाटा उनको याद रहता था और ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज करते थे। जो आदमी म्यूजिक में थे बहुत इनकरेज करते थे, पढ़ाई वालों को इनकरेज करे एंड ट्राई टू फैसिलिटेट एवरी स्टूडेंट टू हिज बेस्ट। एडमिशन एमएससी का तब था ही मूर्ति साहब की वजह से। हम लोग सुबह 7 बजे जाना, 1 बजे तक क्लास, फिर आधे घंटे खाना खाना और उसके बाद लाइब्रेरी में। शाम के 6 बजे मूर्ति साहब देखते थे कौन बच्चा बैठा है और कौन चला गया, चेक करते थे बाकायदा। हमें एक्सकर्शन पे ले गए, प्रीवियस में ले गए हमको शिमला और नारकंडा। नारकंडा की एक पीक हाटू पीक, वहाँ पर हमें सबको ले गए और वहाँ से अगर हाटू पीक पर खड़े हो जाओ तो सतलज रिवर नीचे दिखाई देती है, बिल्कुल लाइन जा रही है। इतनी हाइट तक हमको सब बच्चों को ऐसा लगा जैसे अपने रिस्क पे ले गए हों। एक एक्सकर्शन ये करवाया। फिर इसके बाद में एमएससी का टीचिंग का बहुत ही, क्योंकि हम लोगों के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो क्लास नोट्स इतने परफेक्ट देते थे कि हमें फिर ज़्यादा बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी मेमोरी इतनी शार्प थी कि 20 साल पुराने स्टूडेंट का भी नाम याद था उन्हें। क्लास में कभी हाजिर नहीं ली उन्होंने। बीएससी में जहाँ की 55 बच्चे थे, उन्होंने इस तरह से यूँ देखा, ऐसा किया और बोले क्यों आज प्रकाश नारायण बैरी नहीं आया, प्रेमवती सिंह कहाँ गई, आशा किधर गई। तो ग्रुप जो बैठते थे साथ साथ उन्हें सब याद रहता था। बोले हम लोग कहते थे हो गई अटेंडेंस। Also a commemoration volume, Advances in Plant Morphology, prepared for the occasion was presented to Professor V. Puri. Again, the contribution of Professor Murthy in both these events had been most significant. He was the main figure in compiling and editing the book that contained articles from such celebrated authors as C.W. Wardlaw, H.P. Banks, C.R. Metcalfe, S.C. Tucker, M.F. Mosley, W.R. Phillipson, B.M. Johri, A.N. Rao, S.C. Maheshwari, Mohan Ram, etc.
In winding up the university leadership project in botany, a recommendation was made to effect that in those universities where postgraduate teaching is also done in several affiliated colleges, such a training program should also be made available for in-serviced postgraduate teachers of the concerned affiliated colleges. Also, the UGC readily accepted this in principle. It took some 15 long years to implement it from the current session. प्रोफेसर मूर्ति ने फर्स्ट ईयर में हमको टेक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल कराया। जब हम बीएससी में आए तब उन्होंने हमको टेक्सोनॉमी थ्योरी पढ़ाई, और जब एमएससी में आए तो उन्होंने हमको एल्गी पढ़ाई। प्रोफेसर मूर्ति का जो लेक्चर होता था वो कम से कम 3 घंटे का होता था। सुबह 4 बजे उठ के अपना लेक्चर तैयार करते थे, और जब भी क्लास में आते थे बिना किसी नोट्स के, बिना किसी मटेरियल एड के वो एक्सटेम्पोर बोलते थे। और इतने अच्छे टीचर थे कि उनका एक एक लफ्ज़ हमारी समझ में आ जाता था। इतने मेहनती थे कि उनका जवाब नहीं था। सुबह 6 बजे डिपार्टमेंट में आते थे और रात को 10 बजे डिपार्टमेंट से अपने घर जाते थे। डिपार्टमेंट में गार्डन में क्या हो रहा है, बिल्डिंग में क्या हो रहा है, लैब्स में क्या हो रहा है, टीचिंग में क्या हो रहा है, सब कुछ उनकी नज़र में होता था। एज ए मैन ही वॉज ए परफेक्ट जेंटलमैन एंड ही वॉज मोर देन ए फादर टू मी। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो प्रोफेसर मूर्ति की बदौलत हूँ, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू। After finishing my BSc, I wanted to pursue my PG also, but luckily I had an opportunity to get a job here in this university because of only Professor Murthy, who is my father's 4th brother, called on me and advised me to appear for the interview, and I was selected. As such, since then I am working in this university. He is very laborious, studious, scientific, and immaculate in his thinking, and he is a great personality in administration also. So, Vice Chancellor Sridhar and Registrar always used to keep him in their highest esteems. And any critical problem of the university was handed over to him to inquire into and to streamline things in order according to norms. My eldest sister, who is like my mother almost, she, after her marriage, she settled at Aligarh, and she settled a good for my life. And the proposal came and I married her. Entire marriage was celebrated by Professor Murthy, like my father, mother, and Mrs. Murthy. Mrs. Murthy, she is a boon to us. Though she cannot speak, but she is a very good artist, very good hospitable lady, feeding several people without feeling any tiresome. Actually, I feel as if they are my father, mother. And now, whenever I visit Gadmukteshwar, as per traditions during Amavasyas, I used to pay obeisance for these two souls also, along with my father, mother. I joined Merit College, Merit in 1957 as BSc student. Then I passed my BSc in 1959. And after that, there were only 6 seats in MSc Botany. So, very hard competition. But I got admission here in Merit College, Merit. Then I joined and I was a hosteler. And he was warden of that hostel, Dr. Y.S.
Murthy. So that means my connection with Dr. M.S. Murthy was from 1957 to 1961, when I did my BSc and MSc both from there. And during this period, when he was taking our classes of taxonomy, he had so much of command. Orally he will go on speaking, and there will be about 236 species on which everything was in his mind. He will not confuse, he will not stop, he will just go on telling as if some record is going on. So that way we liked him very much, and he was not egoistic at all. Very simple type of person, very nice to talk to. We went to Badrinath because our aim was plant collection. We had to submit some collections, herbarium. So he will come with us, and then he will explain us what is this plant. He will identify each and every plant on the spot. So that was his knowledge. डॉक्टर मूर्ति आंध्रा से BHU में आए थे। उसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज में एज लेक्चरर ज्वाइन कर लिया और मेरठ ही उनका घर हो गया। उसके बाद उनको कहीं अपॉर्चुनिटी भी मिली तो भी वो नहीं गए यहाँ से, मेरठ में ही रहे। और मेरठ कॉलेज को एक तरह से डॉक्टर मूर्ति ने ही बनाया है। मेरठ कॉलेज का बॉटनी डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी बना, वो उन्हीं की देन थी। डॉक्टर मूर्ति के स्टूडेंट्स मेरठ यूनिवर्सिटी में, आसपास में, नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश और हर जगह फैले हुए हैं। मैं भी डॉक्टर मूर्ति का स्टूडेंट हूँ। मैंने MSc MPhil कैंपस मोनी के अंडर में किया था और PhD भी मैंने डॉक्टर मूर्ति के साथ ही करी है। और उनकी कैपेबिलिटी का आप इस तरह से अंदाज़ लगा सकते हो कि अगर कोई बाहर साउथ से आया हुआ इंसान अगर मान लो मेरठ कॉलेज में चीफ डॉक्टर है या चीफ वार्डन है तो किस तरह की यहाँ प्रॉब्लम्स होती होंगी, वो कितना कैपेबल होगा जो इन चीज़ों को हैंडल करता होगा। और मेरठ कॉलेज का डिपार्टमेंट ही जो है वो उनके नाम से ही जाना जाता है कि अगर मेरठ कॉलेज में बॉटनी की बात की जाए और डॉक्टर मूर्ति का नाम ना आए, ऐसा असंभव है। Both at the Merit College and University, Dr. Murthy had special interest in the development of the botanical garden. At B. Merit University, he was allocated a big chunk of wasteland for the University Botanical Garden. It was surprising that within a span of a few years, he could convert it into a beautiful spot with lots of interesting plants and designs. Dr. Murthy, he was very nice person, although he was, from South India, and his accent was also of South Indian. डॉक्टर मूर्ति हमें जो है फिजियोलॉजी उन्होंने पढ़ाई और टैक्सोनॉमी उन्होंने पढ़ाई थी। फिजियोलॉजी उन्होंने हमें BSc में पढ़ाया और टैक्सोनॉमी उन्होंने हमें MSc में पढ़ाया था और ही वॉज अ वेरी गुड टीचर। मैंने 1992 में एडमिशन लिया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। MSc में जब मैं सबसे पहली बार आया और मैंने वहाँ पर डॉक्टर YS मूर्ति का हर्बेरियम देखा तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि भई ये किस आदमी ने तैयार किया था, वो कौन थे। उनके बारे में मुझे बहुत बातें पता लगी और मालूम पड़ा कि वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने इस इलाके में, आप ये समझ लीजिए जैसे अलग जगाते हैं बॉटनी के लिए या विज्ञान के लिए, उन्होंने अलग जगाई। उन्होंने एल्गी के ज्ञाता थे बहुत बड़े, केवल एल्गी नहीं टैक्सोनॉमी के भी, लेकिन उनके बारे में बाद में ये पता लगा उन्होंने और भी जो चीज़ें थी जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में भी जो काम उस ज़माने में किया कि लोग हम सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा ये है कि उनके आदर्श पुरुष इसलिए थे, उनके बारे में पता है कि 1960 में जब हमारे देश में अन्न की कमी थी और हमारे
भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक समय अन्न छोड़ देना चाहिए कि जिससे सभी को अन्न मिले, तो उनके बारे में पता लगा उन्होंने अपने मृत्यु तक कभी जीवन में दोपहर का भोजन ही नहीं किया। इससे मालूम पड़ता है उनके में कितना ज़बरदस्त उनमें देशभक्ति की भावना थी। अब मैंने 2014 में यहाँ मेरठ कॉलेज में ज्वाइन किया और जो उनकी बनाई इस्टेब्लिश्ड करा हुआ उनका डिपार्टमेंट है, जो उनकी चीज़ें देखी, जो उनकी रेफरेंस लाइब्रेरी देखी, जो उनका हर्बेरियम का कलेक्शन देखा, उससे मैं बिल्कुल चकित हूँ। मेरा आगे कहना ये है कि हम कोशिश करेंगे डॉक्टर वाई.एस. मूर्ति को हम का जो नाम है वो उसे आगे बढ़ाएं और इस बॉटनी डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां तक कि उन्होंने परिकल्पना की थी। थैंक यू। Since then, 11 such conferences have been held in the last week of every December, preferably at a place nearer to the site of Science Congress. Many important decisions have been taken during the subsequent sessions. The number of medals to be awarded each year were increased to 3. Panchanand Maheshwari and Vishambar Puri medals being added to the list. Recently, a fourth medal known as Y.S. Murthy Medal has been instituted by the society to be awarded annually to a young scientist. Professor Murthy was such an efficient, honest and sincere colleague that had he aspired, he could have easily got any position ordinarily available to teachers. Several times his name was considered for presidentship of the Indian Botanical Society, Botany section of the Indian Science Congress, and every time he will decline or withdraw. He never cared for any position. What he actually cared for was work in whatever position he may be. Work was worship for him. This is the most important teaching of his life, and he has left behind for his colleagues, students, and whosoever else care for. किताबें तो हमने उनकी पढ़ी थी, ग्रेट एल्गोलॉजिस्ट थे ये हम जानते थे, पर सामने रूबरू जब हुए थे तो पहली बार सेकंड सेमेस्टर में वो हमें एमएससी सेकंड सेम में पढ़ाने आए थे, तब हुए थे। और उसके लिए हमें डरा रखा था कि वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े कठोर हैं, कोई भी प्लांट उखाड़ लेते हैं और पूछने लगते हैं कि इसका क्या नाम है, बॉटनिकल नेम बताओ, इसका क्लासिफिकेशन कर दो। तो हमें बड़ी घबराहट होती थी उनके बारे में। लेकिन जब वो पहला लेक्चर लेने आए और बड़े पोलाइटली उन्होंने लिया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया, तो ऐसा लगा किसी और ही दुनिया में खो गए। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, बड़े शांत स्वभाव के थे और हमेशा हमारे साथ ऐसे जैसे हमारे पिता की तरह हमसे उन्होंने व्यवहार रखा। डॉक्टर वाई.एस. मूर्ति अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। मैं तो ऐसा लगता है मैं उनसे बचपन से ही जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स को उन्होंने पढ़ाया था। तो बेसिकली ही वॉज माई ग्रैंड टीचर और इतना ज़्यादा मुझे पैम्पर किया हुआ था कि हम लोगों को तो ऐसा लगता है सर पर चढ़े हुए हैं उनके। बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी जो थी 1984 में एमएससी के लिए ज्वाइन किया था। वो मेरे फील्ड कोर्स के भी गाइड रहे हैं और उसके बाद मैंने एमफिल और पीएचडी उनके अंडर में ही करी। और वो बेसिकली आई वाज द लास्ट वन टू बी अवॉर्डेड बाय द पीएचडी डिग्री, क्योंकि उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे। जब भी उनके घर में जाते थे बिना खाना खिलाए तो उन्होंने भेजना ही नहीं होता था। साउथ इंडियन थे तो एक से एक बढ़कर डिशेस, काफ़ी डिशेस खुद बनाते थे। उपमा पर्टिकुलरली बहुत अच्छा बनाते थे और उसके साथ वो स्पेशल सी चटनी सर्व करते थे, मेरे ख्याल से टमाटर लहसुन की होती होगी और साथ में नारियल की। इतने ज़्यादा जेंटल, इतने सिंसियर, बिल्कुल डाउन टू द अर्थ, मतलब ये वॉज द रिनाउंड पर्सनैलिटी। इतने डायनेमिक और इतना अच्छा पढ़ाते थे, शायद उनसे इंस्पायर करके मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया है। Professor Murthy was a charming person who won everyone he came in contact with, and he was so very willing to help that many more people would come to him than is usually the case with a science teacher. His transparent sincerity, untiring hard work spread over long hours, loyalty and integrity of a high order along with a simple disciplined life made him a valuable colleague, ideal friend and example setting teacher. As a consequence, he had many friends and admirers
who were equally sincere and affectionate to him. The relationship between Puris and Murtis was a unique one that defines all comparisons. Murtis even named 2 of their children after them. 2 other persons who influenced Murti considerably was the 2 former principal of the Meerut College. While Dr. B.R. Chatterjee influenced him with his simplicity, honesty and integrity, Mr. Madan Mohan did so by his efficiency and tact. He was a keen observer and had strong nationalistic view. He indeed had a very rich personality, having many facets, each one as bright as the other. Professor Murti was married on May 4, 1946 to Srimati Y. Pushpavali. They had a contented, close-knit family life, built around solid moral values. They had 7 children, 4 elder daughter and 3 sons, all of whom they provided the highest education. Their eldest daughter Annapurna, who did MA in history, is married to Dr. K.S. Saraswat, who retired as Deputy Director of the Birbal Sahani Institute of Paleobotany, Lucknow, and is presently engaged as a national scientist in National Archives. पापा हमेशा लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, हमेशा बहुत ज़्यादा हमारे साथ साथ रहना, 30 त्योहारों पर साथ ही साथ काम करवाना, खाना बनवाना, मिलके काम करते थे सब लोग। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना और सख्त डिसिप्लिन में हमको हमारी परवरिश सख्त डिसिप्लिन में हुई है। पहले हो सकता था हमें अच्छा नहीं लगता था शुरू में, लेकिन बाद में हम अभी भी उसी डिसिप्लिन के साथ रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर मूर्ति साहब सही माने में एक शिक्षक थे। सभी के गार्जियनली बच्चों के लिए उनका भाव, ये सबसे बड़े प्रेरणा का स्रोत मेरे लिए रहा। और एक बात मुझे आज भी याद आती है कि रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर मूर्ति जब हेड थे, उनका मेरठ यूनिवर्सिटी में टाइम टेबल वही रहता था, क्लास वही पढ़ाते थे रेगुलर वे। सारे लोग कहते थे कि आप इतना एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेते हैं? बोले आई वांट टू फिनिश माय कोर्स। जो पीरियड खाली होता था 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का क्लास ले, संडे को भी क्लास लेते थे। और जब क्लास लेते में उन्होंने बच्चों को कहा, यानी कौन सी दैवीय प्रेरणा थी ये कहना संभव नहीं है, कि मैंने आज अपना कोर्स पूरा कर दिया है, नाउ आई विल गो ऑन लॉन्ग लीव। बच्चे थे एमएससी के, वो क्या समझते कि लॉन्ग लीव का मतलब क्या होता है। घर गए, शाम को सामान्य रूप से खाना खाया, टेलीविज़न पर न्यूज़ देखी, सोने चले गए एंड विद इन नो टाइम पता लगा कि लॉन्ग लीव पर चले गए, फिर कभी क्लास नहीं लिया। Rajeshwari, the second daughter, did PhD in botany under the supervision of Professor Puri and is married to Dr. A.K. Sharma, and both are readers in botany in the Janta Vedic College, Baroda. मैं जब छोटी थी तो 9th क्लास में उस समय में कुछ ये होता था कि आप सब्जेक्ट चुनेंगे। अब तो ये नहीं होता, लेकिन तब हुआ करता था। पर मेरा जितना भी शौक था बेहद से ज़्यादा, वो था संगीत की तरफ। और उस समय यहाँ मेरठ में कोई संगीत का आगे शिक्षा नहीं थी बीए के बाद में, और वो बीए तक शिक्षा भी सिर्फ आरजी कॉलेज में थी। पिताजी ने हमारे ये कहा कि देखो संगीत वंगीत कुछ नहीं, साइंस ले लो और संगीत मैं ललित कला एकेडमी से करा दूंगा, आप जैसा भी चाहोगे। क्योंकि आगे की शिक्षा नहीं थी, मेन बात तो यही थी कि बीए के बाद में कहाँ जाओगे, क्या करोगे, बाहर भेजना पड़ेगा। तो लेकिन जिद, और उस जिद में मैंने तेरे दिन सत्याग्रह किया कि नहीं मुझे यही चाहिए, मैं तो यही लूँगी। फिर आया एक यहाँ रमेश माथुर हुआ करती थी, बोले आप उनसे पूछ लीजिए, वो हम उन्हें रम्य बुआ कहते थे। तो हमारी किस्मत ऐसी बढ़िया थी कि रम्य बुआ गई हुई थी बम्बई, तो हमारी उनसे कोई बात हो नहीं पाई और लास्ट डे आ गया और हमें आखिर में साइंस लेनी पड़ी। और आज मैं पीएचडी हूँ
बॉटनी में और अपनी सारी ज़िंदगी इस बॉटनी को ही दे दिया। संगीत का शौक़ मेरा आज भी है और मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे। परिवार पूरा, पापा ही नहीं, उनके भी पिता, भाई साहब वगैरह सब, मतलब हमारे ताऊ जी वगैरह सब, पूरा परिवार, मेरे अपने बहन भाई, बहुत अच्छा। तब फिर जब यहाँ ये बात आई कि अब ललित कला से क्या सीखना है, तो उन्होंने बजाय गायन के वादन सिखवाया। वादन में वायलिन, क्योंकि साउथ में वायलिन का ही ज़्यादा वो है, सितार वितार इतना नहीं होता। तो डॉक्टर एस.एन. राय होते थे आरजी में, तो उनसे हमने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन उसके बाद वो भी बीमार हो गए और हम उसके आगे वादन नहीं सीख पाए। The third daughter, Sheshu, also did PhD in botany and is professor in botany in University of Lucknow. Her husband, Dr. Umesh Chand Lavanya, is a renowned scientist who did his PhD in cytogenetics from Calcutta University and is director rank scientist at the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow. पापा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। डिसिप्लिन के बारे में सभी लोग उनके बारे में बताते हैं, बट बहुत अफेक्शनेट थे। हम लोगों के ऊपर उन्होंने जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा, उसका लाभ हमें ये रहा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में उसको आत्मसात किए और आज तक उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पापा को टेक्सोनॉमी में बहुत पसंद था। आई थिंक दैट आई नो ओनली 1/10 ऑफ वॉट ही हैड द नॉलेज ऑफ टेक्सोनॉमी, बट एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट वॉज इनकलकेटेड बाई हिम ओनली। और इस since he was my teacher too in the department, I really learned how to teach the subject, and जिसकी वजह से मुझे आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में टेक्सोनॉमी में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। जैसा कि स्टूडेंट्स जो लौट के आते हैं वो बताते हैं, उससे मुझे ये समझ में आता है कि मैंने शायद पापा का तरीका अपनाया, जिसकी वजह से बच्चों को वो सब्जेक्ट जो आम तौर पे लोगों को मुश्किल लगता है, काफ़ी आसान और समझ में आने वाला बना। अलावा इसके आज़ादी के जहाँ तक सवाल है, सब्जेक्ट से लेके जो पैशन हमें करना था हमें करने को मिला। कुछ घटना याद आती है, मैं और मेरी छोटी सिस्टर विमला, हम दोनों को वोकल म्यूज़िक में उन्होंने डाला। हमें बिल्कुल नहीं जाने का शौक़ होता था, बट पापा यूज्ड टू सी कि 4 बजे अपन उठेंगे, और वो बाकायदा तानपुरा लेके हमारे साथ जागते थे और वो ये देखते थे कि हम रियाज़ करें। उनके लिए समय की पाबंदी इतनी ज़्यादा थी कि अगर 4 बजे उठ के रियाज़ करना है तो 4 बजे उठ के रियाज़ करना है। और जब हम लोग छोटे थे तब छोटी क्लासेस में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, फिर भी 6 बजे उन्हें डिपार्टमेंट जाना होता था। तब वो मेरठ कॉलेज में थे, तो 6 बजे अगर डिपार्टमेंट जाना है, 7 बजे जाना है, तो 6 बजे हम भी जग जाएंगे, हमको भी नहला धुला के साथ में नाश्ता करेंगे, तब वो जाएंगे। ये बात अलग है कि जब हम लोगों की पढ़ाइयाँ इतनी कम होती थी कि उनके जाने के बाद हम फिर दोबारा सो जाते थे, मगर उन्होंने उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि टाइम को आप वैल्यू ना करें। शाम को यूनिवर्सिटी से आ गए, सबको इकट्ठे खाना खाना है तो पूरा परिवार इकट्ठे खाना खाए। कोई भी एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम बाद में खाएंगे। एक ही खास बात थी उनकी, कोई भी सब्ज़ी कोई भी चीज़ ख़राब है ये कहने का हमारे पास कोई हक नहीं था। ख़राब है तो 3 दिन तक वही सब्ज़ी बनेगी जब तक हम लोग उसको अच्छी सब्ज़ी ना कह दें, तो हम खाते खाते एक्सपीरियंस कर जाए। मुझे बचपन की एक घटना याद है, प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, हम लोगों के पास व्हीट की बहुत कमी थी, तो उन्होंने ये एक लोगों से आह्वान किया था कि एक वक्त का खाना छोड़ दें। ये सन 66 की बात है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट किया और पूरे घर में, हम लोग छोटे बच्चे होते थे, बावजूद इसके सोमवार की रात को सबको शकरकंदी खाने को मिलती थी। चाहे भून के खाइए, चाहे उबाल के खाइए, साथ में मठा लीजिए या दही लीजिए, दूध लीजिए, मगर सीरियल्स नहीं बनेंगे। दाल भी खाने को नहीं मिलती थी। सब के सब हम बहुत छोटे बच्चे होते हुए भी शकरकंद खा के हमें कभी नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, हमें खाने को नहीं मिल रहा है। दैट काइंड ऑफ बिलोंगिंग टू नेशन ही टॉट अस व्हेन वी वर वेरी स्मॉल। ईमानदारी की बात करते हैं हम, एंड डिसिप्लिन, हाँ, सो इसलिए कि वो हमने सीखा। तो बच्चे घर में लेडीज़ से सीखते हैं ज़्यादातर, तो जो हमें मिला वो हमने अपने बच्चों को दिया, उनके बच्चों के साथ भी वही चीज़ आई है। तो मुझे गर्व है कि मैं उनकी संतान हूँ और हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, मुश्किलों में ना घबराना भी सीखा। सो दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रोफेसर मूर्ति साहब का नाम मैं तभी से जानता हूँ जब मैं आगरा में विद्यार्थी था, लेकिन उनसे मुलाकात मेरी तभी हो पाई जो पहली बार नवंबर 1979 में वो हमारे गांव शादी का संबंध लेके आए। प्रोफेसर मूर्ति साहब मेरे फादर लो थे।
जो और सब्जेक्ट के ज़्यादा थे। वो चाहते तो अपनी बातें बहुत सी हमसे कह सकते थे, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब भी प्रोफेशनल बात आई तो उन्होंने हमेशा मित्रवत सलाह दी, कभी अपने को इम्पोज नहीं किया कि ये बात ऐसे होनी है। एक बार मुझे मौका लगा, मैं उस समय एक कॉलेज में पढ़ाता था और चाहता था किसी विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में जाऊँ, तो ये कहा कि एक बार मौका मिला दूर जाने का, शिलोंग की तरफ, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने इतना ही कहा कि भाई तुम्हारी इच्छा है, जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी नहीं करनी है और जो भी डिसीजन लेना है सोच विचार के लो, और आसपास रहोगे तो आगे तुम्हें सामाजिक परिस्थितियों में पारिवारिक दृष्टिकोण से और प्रवेश दृष्टिकोण से जरूरत रहेगी। The youngest daughter Vimla had been a very bright student, although she attended a training program in Hungary under UNESCO fellowship for a year and is presently professor and head of the Department of Botany of CCS University, Meerut. Thus, as many of his daughter and 3 son-in-law have been serving the cause of botany that was so dear to Professor Murthy. बचपन से मैंने पिताजी को एक ऐसे शख्स के रूप में देखा था जो बाहर के लोगों पर कभी बहुत गुस्सा करते थे, पर वो हर काम बहुत सलीके से कराना पसंद करते थे और लोग उन्हें मानते भी बहुत थे इन सब बातों के लिए। मैं छोटी थी, पहली कक्षा की स्टूडेंट, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी करूं उससे पिताजी खुश हों। तो एक बार मेरी एक किताब खो गई और अगले दिन सुबह उन्होंने उसी किताब के बारे में पूछा कि हाँ कुछ पढ़ा है, बताओ ज़रा। मुझे वो पूरी किताब पहले पेज से आखिरी पेज तक याद थी। तो मैंने कहा मैं सुना दूंगी लेकिन किताब नहीं दिखाऊंगी। तो बोले क्यों, किताब लेकर आओ। तो अब मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो बोले रोने क्यों लगी, क्या याद नहीं है? मैंने कहा मुझे पूरी याद है पर किताब खो गई है। तो पिताजी बोले कि इस बात के लिए रोना चाहिए, किताब दूसरी आ जाएगी, रोने की क्या बात है, इतना रो रही हो, जब तुमको पूरी याद है तो फिर मिलेगी। 10th में मैं पढ़ाई में लगी रहती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि ये मैं कैसे करूं, इतना अच्छा मेरे को डिवीज़न लानी है, फर्स्ट डिवीज़न लानी है, और मैं लगी रहती थी। तब तक फर्स्ट डिवीज़न इतनी आसान बात नहीं थी और घर में किसी ने देखी नहीं थी, तो सबको ऐसा लगता था कि भाई ये कर रही है मेहनत, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी आए एक बार, मुझे पढ़ते हुए देखा तो बोले अच्छा अब की बार फर्स्ट डिवीज़न लाओगी लगता है। ये मेरे लिए एक ऐसी चुनौती थी कि अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाई तो कहीं मैं पापा की नज़रों से गिर ना जाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मन तो ऐसा ही था। और जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट डिवीज़न थी, पापा बहुत खुश हुए। तो पिताजी ने हमेशा ये चाहा और सराहा कि मैं अच्छी से अच्छी डिवीज़न लाऊं, अच्छा से अच्छा पढ़ूं और जीवन में कहीं अच्छा मुकाम पाऊं। जब हंगेरी के लिए मेरे पास यूनेस्को की फेलोशिप आई तो उन्होंने मुझे जिस तरह प्रमोट किया उसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो कहीं जाने आने नहीं देते थे लोगों को, पढ़ो पढ़ो कहते थे। मुझे उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि पढ़ो पढ़ो, शायद उन्हें मेरे अंदर ऐसा लगता था। और इतने जितने भी लोगों से मैं मिली उनकी मृत्यु के उपरांत भी मुझे हमेशा और ज़्यादा गर्व का अनुभव होता था कि मैं किस पिता की पुत्री हूँ जिसने कहाँ से आकर कहाँ ये मुकाम हासिल की जहाँ उनका कोई नहीं था। His eldest son, Sundar, is a veterinary doctor serving Indian Army as colonel. पिताजी के साथ की मेरी जो यादें हैं वो 12वें दर्जे से पहले की हैं। उसके बाद मैं भी पढ़ने के लिए बाहर चला गया, लेकिन बड़ी मीठी और सुंदर यादें हैं। जैसे उनके साथ नौचंदी मेले जाना और पक्का सत्कार के यहाँ बैठ के डोसा खाना नौचंदी मेले में, और सोहन हलवा उड़ाना, और उसके बाद लौटते लौटते सॉफ्टी खाना। तो ये एनुअल कार्यक्रम की तरह से सिर्फ नौचंदी मेले में आता था जब सॉफ्टी खाई जाती थी। तो हम भी बहुत इंतज़ार करते थे, कि कब नौचंदी आए और कब पापा के साथ हम नौचंदी मेला जाएंगे। और भी बहुत यादें हैं। होली, दिवाली, त्यौहार बड़े बढ़िया मनते थे, और उन दिनों हम देखते थे कि जैसे होली पे गुजिया बननी है या नमकीन बननी है तो पापा साथ में, या हमारे घर में अचार का प्रोग्राम एक बड़ा तगड़ा बनता था, आम के अचार का। तो उसमें सेलेक्ट फ्यू शामिल होते थे। पिताजी का काम था आम काटना, पीस बनाना, माताजी मसाले के मिश्रण, मैं मसाला पीसता था
तो सबके काम बटे हुए थे और ये बचपन से करा साथ में। और बड़ा एनुअल इवेंट होता था, जून के महीने में पसीना आ रहा है और आप मिर्चें कूट रहे हैं, आहा। लेकिन बाद में पूरे साल आनंद भी आता था अचार खाने का। अब वो बात रही नहीं, अब अचार पड़ते नहीं, ना इतने खाए जाते हैं। पर तब 80 किलो तक आम का अचार हमारे यहाँ पड़ता था, जो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी होता था। पर वो माँ, पिताजी, बड़ी दीदियाँ और मैं, हम लोग मिलके इस काम को करते थे। ऐसी कई यादें हैं, जितना सोचूंगा उतनी चीज़ें निकल के आती रहेंगी। डिसिप्लिनेड थे, सख्त थे, कहीं आप गायब रहें खेलने के लिए नहीं। 7 बजे उनकी विक्की एंटर होनी और हमने घर में एंटर हो जाना। उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि 7 बजे सबने शाम को साथ में खाना खाना है। सुबह उन्होंने निकल जाते थे, शाम को 7 बजे आते थे और वो डॉट टाइम था, घड़ी मिला लें आप, बिल्कुल ऐसा टाइम था। बाहर खाते नहीं थे, घर का ही खाते थे। तो बड़ी सादी और बढ़िया ज़िंदगी थी और कभी किसी तरह की हमें तो कमी महसूस हुई नहीं, हर तरह का आनंद लिया। अब वो बात रही नहीं, समाज में भी वो बात नहीं रही, लेकिन बड़े बढ़िया दिन थे। उसके बाद मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए, फिर बाहर ही नौकरी लग गई, तो घर त्योहारों में आना जाना होता था। वैसे कांस्टेंट साथ रहने वाली बात नहीं थी, बट बड़ी अच्छी और मीठी यादें हैं पिताजी के साथ की। कि कांग्रेगेशन होना, जैसे गणेश चतुर्थी आ जाए तो गणेश चतुर्थी की पूजा उन्होंने ज़ोर शोर से करनी और हम सब ने मिल के पीछे से साथ देना। वो अभी भी वो ऐसी की ऐसी याद है और वैसे ही कोशिश करते हैं हम भी करें। The second son, Satyam, did M.Com and is looking for finances of a reputed publication house at Meerut. मुझे जो अपने पापा की याद में रहता है, हम लोग नाना कहते थे। तो एक तो ये कि मैं उनका शायद, मैं बचपन में बीमार बहुत पड़ा, तो मैं उनके साथ हमेशा उन्हीं के बिस्तर पे सोना, उन्हीं के साथ सोना उठना बहुत टाइम तक, जब तक बड़ा होता मेरा उन्हीं के साथ था। एक चीज़ जो हमेशा याद रहती है वो ये कि पंक्चुअलिटी, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे। हमारा गेम भी शाम को समय पे ही बंद होता था, हमें पता था शाम को कितने बजे वो आना। एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है जो हमें कभी भी नहीं पता चला अपनी लाइफ में शुरू में, वो ये, पापा लंच नहीं लेते थे। हम सोचते थे क्योंकि यूनिवर्सिटी जाते हैं इसलिए लंच नहीं लेते। बड़े होने के बाद पता चला 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अन्न की कमी हो गई है, तो एक टाइम का भोजन जो लोग भी छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। शायद ही वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने मतलब भोजन को एक टाइम का त्याग दिया। तो ये पंक्चुअलिटी बहुत कम लोगों में देखी है और इतना अनुशासन जीवन में, तो मैं तो हमेशा से इस बात का तो कायल रहा हूँ उनका। बाकी क्योंकि मैं बीमार बहुत रहा तो मेरी केयर बहुत ज़्यादा हुई। हर वो जगह जहाँ मेरे 12th का बोर्ड का पेपर था तो भी वो वहाँ मौजूद थे, मेरे 10th का बोर्ड का पेपर था वो भी वहाँ मौजूद थे। मेरे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे होते गए, लेकिन शायद वो जो इंस्पिरेशन है, वो जो आज भी मैं घर में सब लोगों के बीच में इसी वजह से मेरा जिक्र ज़्यादा हो जाता है, मैं टाइम के पीछे बहुत पड़ा रहता हूँ। ये बचपन की ही कुछ क्रॉप है जो अब उग के ऐसी हो गई है। The third did BE from Roorkee University, MBA from Indian Institute of Management, Ahmedabad, and has now opened his own consultancy at USA. So मेरी यादों का जहाँ तक सवाल है, मैं छोटा था, बहुत छोटा था जब सबसे छोटा हूँ घर में। बहुत सारा समय मेरे को ये याद आता है कि पिताजी काम पे बिज़ी रहते थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और घर में हम लोग बचे हुए लोग जो करते थे, हंसना खेलना सब चलता रहता था। मैंने कभी पिताजी को किचन में नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा। पर एक 84 नहीं, शायद लेट 70s की बात है, जब कर्फ्यू चल रहे थे और बेसिकली सिटी बंद था, 2-3 हफ्ते तक कम से कम बंद था। 87 की बात है। एंड मुझे ये याद आता है कि उस समय पे सडनली पिताजी टुक द हेल्म
इन अ वे कि घर में कोई भी प्लांट था, अपना बॉटनी का सारा कलर लेके आए, उस प्लांट की हर चीज़ से हमने सब्जी बनाई और घर में बैठ के हमने पूरा घर के ही गार्डन से 3 हफ्ते तक आराम से काम चलाया। कुछ चीज़ें बाहर से आती थी, आज सब्जी रूट की बन रही है, आज सब्जी पत्ते की बन रही है, आज सब्जी तने की बन रही है। और दैट्स द डिफरेंस दैट आई रिमेंबर एज इन कभी नॉर्मली मैं तो किचन में देखा नहीं, पर सारे आइडिया लेके हाउ डू वी मेक यूज़ ऑफ थिंग्स एंड दैट्स अ स्टोरी आई थिंक जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर तरीके की स्टोरी हैं, ये वाली मेरे को याद रहती है। Thus, Professor Murthy had a very successful and satisfying life. He had no worries of any kind. He suffered a massive heart attack on February 21st, 1988, just before going to bed, and passed away peacefully, leaving behind very large number of friends, admirers, and students who will miss him for many more years to come. Thank you.